Good morning, everyone. Morning, ma'am. So, Ma'am, everything is fine, na? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Okay. Ma'am, how are you, ma'am? I'm good. I'm good. Okay. हाँ जी. तो कल आपकी स्लाइड्स तो शेयर नहीं हो पाई थी, बट आप लोगों ने रिवाइज किया था. Yes, ma'am. Ma'am, हाँ. I had seen maximum sums based on that frame numbers per minute, etc., etc. Ma'am, हम्म. if it's possible to solve one or two question or ठीक then है, आप मेरे को वो क्वेश्चंस या तो एक बार सेंड कर देना. okay, ma'am, just now I will send. आप हाँ कभी भी भेज दो आप मेरे को. तो जब भी हम नेक्स्ट क्लास में जब भी न्यूमेरिकल्स का एक सेशन रखेंगे, आपका ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल्स भी हम कर लें, उसके बाद ना फ्लो कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, जब सारे हो जाएंगे कंट्रोल्स, सो उसके बाद विल कीप अ न्यूमेरिकल सेशन फॉर डेटा लिंक लेयर ओनली. ठीक है, एड्रेसिंग से पहले. सो तब हम वो न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर लेंगे. Okay, ma'am. ठीक है, सो आप मेरे को भेज देना जो भी क्वेश्चंस हैं. अच्छा. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द HDLC वाला टॉपिक है. ठीक है, मैं बुक में आपका HDLC पहले है बिफोर योर एक्सेस कंट्रोल्स. सो लेट अस स्टार्ट विद द HDLC. बट बिफोर HDLC देयर इज अ टॉपिक दैट इज पिग्गीबैकिंग. ठीक है, so first we'll study that piggybacking and then we will move forward with your HDLC. So what is piggybacking basically? So abhi tak what we were talking is, what we were discussing was basically a one way communication. That is, the sender was sending and receiver was receiving. Nothing else we were doing. Okay, receiver was only sending what? Receiver was only sending your acknowledgements. But in daily life we don't have one way communication. We have what? We have two way communication. So how can we deal with two way communication? So in two way communication what happens is, sender also sends a message and receiver also sends a message other than your, what you can say, acknowledgement. So sender at one point of time can become a receiver as well, right? दिस इज टू वे कम्युनिकेशन ओनली, कि मैं आपको कुछ सेंड कर रही हूँ, आप मुझे रिप्लाई में कुछ सेंड कर रहे हो विद द एक्नॉलेजमेंट कि आपको मेरा मैसेज मिल गया है. सो दिस इज बेसिकली इज नोन एज योर टू वे कम्युनिकेशन. सो व्हाट इज पिग्गीबैकिंग? In two way communication, whenever a Good frame morning, is ma'am. received. Good morning, Senorita. So whenever a frame is received, so receiver waits. What happens is that, ki suppose I am having a two way communication. So what will happen in two way communication? If this is the sender and this is the receiver, so what will happen? Sender will send the messages. So sender will keep on sending the messages. So what receiver will do, instead of sending the acknowledgement for each and every message, what he will do, he will just wait. So suppose this is your message 1, then this is your message 2, then message 3. Suppose 4 messages are sent like this. Now what will happen is, after receiving the 4 messages, what receiver will do? Now receiver will send its message along with the acknowledgement. Message plus acknowledgement. So this is what happens in two way communication, that receiver waits for the particular amount of time ki let sender sends the message, let all the message from network layer be received. So this is what they're saying. In two way communication, whenever a frame is received, the receiver waits and does not send the control frame, that is your control frame, basically your acknowledgement, back to the sender immediately. What it does, the receiver waits until its network layer passes in the next data packet. The delayed acknowledgement is then attached to this outgoing data frame. So what happens is, when the network layer sends the data packet, that is to be sent from receiver to sender. Abhi tak sender was sending, now in two-way communication, receiver will also send the information. So now receiver will wait for the amount of time that your network layer will send you the data. Suppose now network layer has sent the data and this data is to be transmitted to the sender. So what will happen is, receiver will send this data along with the acknowledgement. Instead of sending the acknowledgement alone, in two way communication, I'm talking about two way communication, ठीक है, single communication की बात नहीं, bi-directional communication की बात है. So when the two way communication, when will happen and receiver will send the data, so then he will send the acknowledgement along with the data. He will not send the acknowledgement again and again separately.
This is what happens. The delayed acknowledgement is then attached to this outgoing data frame. So this technique of temporarily delaying the acknowledgement so that it can be hooked with the next outgoing data frame is known as piggybacking. So what is piggybacking? That receiver is waiting for a particular amount of time, and when he receives the data from the network layer, then he sends that data along with the acknowledgement that he was delaying. So what is important point? Important point about piggybacking is that both the sites, that is the sender and the receiver, must use the same algorithm or the same protocol. Whatever method they are using, it must be same for both of them. So this is the basic thing, that is your piggyback. Okay. Now next is your HDLC. So what is HDLC basically? So HDLC full form आपको पता होनी चाहिए, very important because they may give you the full form. So high level data link control. So HDLC is high level data link control. So it is a bit oriented protocol for communication over point to point and multi-point link. So point to point basically means that you have one sender and one receiver, and multi-point link means you have one sender and multiple receivers, right? And it implements the ARQ mechanisms. ARQ means automatic repeat request. So what is high level data link control? So in high level data link control, we have a communication that is bit oriented protocol. Bit oriented means that we travel the information related to bits, in bits. So bit oriented protocol, and it can be either point to point or multi-point. So point to point is between one sender and one receiver, and multi-point is between one sender and multiple receivers. So HDLC provides two common transfer modes. Two common transfer modes मतलब आपके जो message है, whatever message you have, in order to transfer that message, you have two different configurations. Now, HDLC से अभी तक no question has been asked in your previous year exams. ठीक है? I have checked the previous year questions. I couldn't find one question from HDLC, but it does not mean कि अभी भी नहीं आ सकता है. So I have tried to include the theory that because numericals are not there from HDLC. So everybody's having this problem? No, ma'am. No, ma'am. Poonam, I think network issue है आपके side से, maybe. So yes, what I was saying कि HDLC से there has been no question that has been asked till now. So I have tried to include all the theory. There is theory only in this HDLC. There is no numerical and all. So it's just basic theory है, कुछ भी इतना tough नहीं है इसमें. So it's very easy. Now there are two basic modes of transferring information from one side to the other one. So what are this? First one is a normal response mode, and second one is asynchronous balanced mode. ठीक है, ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए. They may ask कि what are the two different modes, and they will give you 4 different names. So आपको ये पता होना चाहिए, normal response mode and asynchronous balanced mode. Now what is all this? So normal response mode, basically NRM, is the station configuration is unbalanced. So now what does unbalanced means? Unbalanced means that there is one primary station and multiple secondary stations. So now one primary and multiple secondary का मतलब कि it is valid for both point to point also and multiple point also. ठीक है, multiple point आपको पता है ना, अगर if you remember कि this is, if suppose I have one device, so it will be connected to multiple devices. ये पता है ना आपको वाली चीज? This is your multi-point. If this is the point we have, these are the devices to which they are connected. So this is your multi-point, and point to point is that one is connected to the only one device. This is your point to point. So normal response mode basically जो है वो unbalanced है. Unbalanced है. Why unbalanced? Because in this only primary station जो आपका, अगर this is my primary device and these are all my multiple secondary devices, so what will happen is that only primary station can send the commands. कोई भी command अगर send करना होगा, whatever message that is to be sent, only primary station can send that message, and secondary station will only respond. That secondary station will not be able to send any messages back. They can only respond to the message that has been sent by the primary station. So that is what is normal response mode. So NRM, that is normal response mode, is used for both point to point and multi-point links. So if you see this diagram, first one is point to point.
So what is happening here is that primary device, this is your primary device and this is your secondary device. Since it is point to point, only one sender and one receiver is there. So what is happening? Primary device is basically sending a command, and in return, secondary device is only sending response. Similarly, if we have multi-point devices, so what is happening? That primary is sending a command and the secondary devices are sending their responses related to that command. So this is your normal response mode. So what it is unbalanced. Why it is unbalanced? Because only one primary station is there and multiple secondary stations are there, and primary can send the commands and secondary will only respond. One is हो गया आपका normal response mode. Second is asynchronous balanced mode. Now if you see here, this is only between point to point. Another important point is that asynchronous balanced mode is between point to point only. So we have one. हाँ जी मैम एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है कि जो हमने लास्ट में जो पढ़ा है अभी आरएम में, उसमें बेसिकली ये है कि हमारा प्राइमरी स्टेशन हमारा 1 है एंड सो मेनी सेकेंडरी स्टेशन हो सकते हैं. बट क्या ये चीज अप्लाई पॉइंट टू पॉइंट में तो नहीं हो सकती, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में तो एक ही होता है, वन नोड टू अनदर नोड कनेक्ट होता है, सिंगल लिंक कनेक्शन होता है. तो मैम फिर कैसे मल्टीपल इसमें तो मल्टीपल सेकेंडरी स्टेशन नहीं होंगे ना, वो सिर्फ अप्लाई हो सकता है मल्टी पॉइंट पे. ठीक है मैम, यही क्लियर करना था. पॉइंट टू पॉइंट तो नाम से क्लियर है कि एक आपका प्राइमरी स्टेशन होगा, एक आपका सेकेंडरी होगा, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज एप्लीकेबल टू बोथ पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टीपल पॉइंट. मैम बोथ आ गया, दैट्स व्हाई कंफ्यूजिंग ओकर हो गया. बोथ पॉइंट टू मतलब पॉइंट टू पॉइंट का एक सेंडर, एक आपका एक डिवाइस है सेंड कर रही है, एक आपके रिस्पांस भेज रही है, और मल्टीपल पॉइंट्स में एक कमांड भेज रही है और बहुत सारी हैं जो वो रिस्पांस भेज रही हैं. बस मतलब ये वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं होगी ना पॉइंट टू पॉइंट में. पॉइंट टू पॉइंट तो अलग डिवाइस अलग टाइप की वो हो गई ना. पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज. आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते. पॉइंट टू पॉइंट इसलिए उन्होंने अलग से यहाँ पे इसलिए उन्होंने मेंशन किया है. अगर वो ये लिख देते खाली एनआरएम इज यूज्ड फॉर मल्टीपल पॉइंट लिंक्स, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते अगर मल्टीपल पॉइंट लिंक्स लिखा है मतलब कि एक ही और यहाँ पे भी एक है. उसके लिए उन्होंने अलग से एक टर्मिनोलॉजी मेंशन की हुई है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट. अगर आपके पास एक प्राइमरी डिवाइस है और एक ही आपके पास सेकेंडरी डिवाइस है, तो उसको आप ये नहीं कह सकते मल्टीपल पॉइंट लिंक्स, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट ही बोलना पड़ेगा. अब क्लियर हुआ? ओके. Then asynchronous balance mode जो है आपका, it is only for point to point. मतलब कि point to point मतलब एक आपके पास एक डिवाइस यहाँ है एंड एक डिवाइस यहाँ है, मतलब it is a link between two devices only, and each station can function as primary and a secondary acting as peers. Peers means basically अगर common language बात करो तो friends का मतलब होता है peers. ठीक है. So this is basically कि कोई भी मैसेज कमांड भेज सकता है कोई भी डिवाइस between two points. अगर मैं two systems के बीच की बात करूं, so asynchronous balanced mode is first thing that is balanced. Second, it is between point to point only, मतलब कि दो डिवाइसेस के बीच में ही हो सकता है ये वाला कम्युनिकेशन. Then both the devices, both the stations can be primary as well as secondary. Primary में they can send a command, secondary में they can send a response. So asynchronous basically means that each station, that is point to point, each station means two stations are there in point to point. So each station can act either as a primary device or as a secondary device, and this is the common mode today. ये चीज क्लियर हो गई दोनों, नॉर्मल रिस्पॉन्स और एसिंक्रोनस बैलेंस मोड? यस मैम. एवरीवन? यस मैम. ठीक है. सो दिस इज योर फर्स्ट थिंग, दैट इज कि आपके मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है HDLC में कैसा है. नेक्स्ट इज दैट फ्रेम्स. अब आपके HDLC बेसिकली आपका वर्क करता है डेटा लिंक लेयर पे. ठीक है. सो इन डेटा लिंक लेयर व्हाट वी हैव, वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ फ्रेम्स. ठीक है. So now to provide flexibility necessary to support all the options possible in the modes and configurations, मतलब कि आपके HDLC में जितनी भी टाइप ऑफ मोड्स हैं जो हमने पढ़ी और जितनी भी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस जो पॉसिबल हो सकती हैं डेटा लिंक लेयर पे, all these things are to be supported by HDLC. और ये अच्छे से फ्लेक्सिबली ये सारा काम हो जाए उसके लिए there are three type of frames that are supported by HDLC. First is information frames.
यहाँ पे आपके अननंबर्ड फ्रेम्स को कहीं पे इन्होंने वी फ्रेम्स लिखा है और कहीं पे यू फ्रेम्स लिखा हुआ है. सो आई थिंक इट इज यू फ्रेम्स. बाय बिकॉज इट इज अननंबर्ड मींस यू है. एक बार और मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगी, ठीक है. सो एक बार मैं कंफर्म कर ही लेती हूँ. इट्स बेसिकली यू है यहाँ पे, ठीक है. यू फ्रेम्स है ये. सो ये मैं आपको चेंज कर दूंगी जब मैं आपको कल वाली वो भी नहीं मिली ना पीडीएफ. नो मैम. कल वाली पे मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है. सो अब आपके 3 टाइप ऑफ फ्रेम्स हैं. पहला है इंफॉर्मेशन फ्रेम, दैट इज आई. सो इंफॉर्मेशन फ्रेम्स आर बेसिकली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द यूजर डेटा, जो भी आपका डेटा है, मैसेज है, एंड द कंट्रोल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू योर डेटा, जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है, दैट इज बेसिकली सेंट विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम्स. फिर आपका है सुपरवाइजरी फ्रेम. नाउ सुपरवाइजर बेसिकली अगर आपके इंस्टीट्यूट में भी आप पढ़ो, आप देखो, सुपरवाइजर इज बेसिकली फॉर सुपरवाइजिंग की पूरा जो काम है वो कैसे चल रहा है, how all the work is going on, how flexibly the work is going on. So supervisory frames are basically used for transporting the control information, that is how we are controlling how the information is being traveling from one place to another, how controlled it is. So that is your supervisory frames. And then we have unnumbered frames. So unnumbered frames are reserved for system management. System management means कि आपका जो system है वो कैसे manage हो रहा है पूरा, आप कैसे जो हर layer जो है वो data link layer से जो connect हो रही है layer वो कैसे manage कर रही है. So this is basically for your unnumbered frames. And information carried by V frames, or sorry U frames here, U है, is intended for managing the link. तो आपका link जो है between two devices, जो आपके link है, multiple point है या point to point है, जो भी आपका link जो है आपने maintain किया है, वो कैसे manage हो रहा है, that is basically carried out in your unnumbered frames. So information frames हो गया, supervisory frames हो गया और unnumbered frames हो गया. ये 3 चीजें भी याद रखना. Why? Because जब हडूप का क्वेश्चन आया था डीबीएमएस से, तो हडूप में भी उन्होंने बहुत बेसिक चीज पूछी थी, बिल्कुल डीप में नहीं गए थे वो, जस्ट वेरी 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 बेसिक चीज थी, जो भी आपकी विंडोज टाइप का जो भी क्वेश्चन आया था. सो इसलिए मुझे लगता है कि अगर एचडीएलसी से भी क्वेश्चन आता है, सो दे विल कीप इट वेरी बेसिक फॉर नाउ, बिकॉज अभी तक दे हैव नॉट आस्क्ड एनी क्वेश्चन इन एचडीएलसी. एंड एक जो लगता है मुझे एचडीएलसी से क्वेश्चन नहीं आ सकता, वो क्या है, बिकॉज कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ. So they have to cover few important topics like your addressing. ठीक है, addressing उन्हें cover करना ही करना है. Then they have to cover your security part. Then they have to cover your data link layer की जो theory है, numericals हैं. So there is very rare chance कि HDLC से question आएगा, but you never say कि नहीं आ सकता. So just study the very basic things जो आपको बहुत clearly पता होनी चाहिए. That is your जो भी names हैं आपके HDLC में, जैसे कि आपके modes of transfer हो गए, फिर आपके types of frames हो गए, फिर अभी आप frames में आगे भी देखोगे, so वो भी थोड़ा मैंने डिटेलिंग में ऐड कर दिया स्लाइड में, बट आपको बेसिक्स तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए HDLC वाले. या ऐसे कोई भी टॉपिक्स जो हैं जो कभी पढ़ाए नहीं गए हैं, जो कभी एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, उनके बेसिक्स थोड़े बहुत पता होने चाहिए. Now let's talk about the frame format. So अब यहाँ पे लिखा है कि each frame in HDLC may contain up to, ठीक है. So this is not necessary कि 6 fields ही होंगी. They may contain up to 6 fields. मतलब ज्यादा से ज्यादा they can contain 6 fields. ठीक है. This is not compulsory कि हर frame में HDLC की हर frame में 6 fields ही होंगी. So that is why they have written may contain up to. So what are the 6 fields? First is your beginning flag field. ठीक है, जब हमने फ्रेमिंग पढ़ी थी तो उसमें आपको बताया था, एक बिगनिंग में हम फ्लैग लगाते हैं, एक एंड में फ्लैग लगाते हैं, याद है आप लोगों को? अगर आपको याद हो फ्रेमिंग जब हमने पढ़ी थी, सो देयर वर 4 फील्ड्स. एनीबॉडी, किसी को याद है वो 4 फील्ड्स कौन कौन सी थी? 4 या 5 फील्ड्स थी आपकी शायद से. एक तो यहाँ पे हेडर था. बताओ पूनम, आप बताओ फिर, what were the fields? एक तो मैंने बता दी, बाकी यस बताओ सब. फ्रेमिंग में ये तो आपने मुझे रैंडमली बता दी. रैंडमली बताओ यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड्स थी. पहली फील्ड कौन सी थी? सेकंड मैंने हेडर बता दिया आपको. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. चलो पूनम वेट, फर्स्ट आपने बता दी फ्लैग. ठीक है, करेक्ट. सरिता ने बता दिया. कीर्ति
थर्ड बिट कौन सी थी? थर्ड वाली चीज क्या थी? ओके करेक्ट, यूजर मैसेज, ठीक है। देन लिपिका, फोर्थ चीज क्या थी? आइडेंटिफायर। करेक्ट पूनम, ट्रेलर, करेक्ट। एंड देन लास्ट में क्या था? करेक्ट, फ्लैग। कीप रिवाइजिंग दी कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि पुराने कंसेप्ट यूज होते रहेंगे एंड ऐसे ही पूछती रहूंगी मैं, फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। सो प्लीज कीप रिवाइजिंग द थिंग्स। सो अब यहाँ पे जो आपका HDLC है, ये बेसिकली आपका फ्रेम फॉर्मेट है जो आपका यूज होता है डेटा लिंक लेयर फ्रेमिंग के कंसेप्ट में, ठीक है। बट यहाँ पे HDLC जो है उसमें आपका अलग फ्रेम फॉर्मेट है। व्हाट इज द फ्रेम फॉर्मेट इन HDLC? सो HDLC में HDLC में जो फ्रेम है दे में कंटेन अप टू 6 फील्ड्स। व्हाट आर दोस? फर्स्ट इज योर बिगिनिंग फ्लैग फील्ड, मतलब सबसे पहली फील्ड हो गई आपकी फ्लैग की, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें। सो फर्स्ट इज योर फ्लैग फील्ड, ठीक है। सेकंड होगी आपकी एड्रेस फील्ड की मैसेज कहाँ से आ रहा है, मैसेज किसको जा रहा है, बेसिकली आता है कि रिसीवर का मैसेज हम डालते हैं यहाँ पे। Then we have control field, then we have information field, फिर we have frame check sequence, and then we have ending flag, ठीक है। सो इन मल्टीपल फ्रेम्स, जब आप मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसमिट करते हो, सो एंडिंग फ्लैग ऑफ वन फ्रेम कैन सर्व एज द बिगिनिंग फ्लैग ऑफ द नेक्स्ट फ्रेम, ठीक है। अब लेट अस सी कि जो आपके फ्रेम्स हैं, दैट इज योर आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम, इनके क्या क्या फील्ड्स हैं। सो देयर आर 1 2 3 4 5 6 फील्ड्स हैं आपकी आई फ्रेम में। 6 क्या है? फर्स्ट हो गया बिगिनिंग फ्लैग, फिर एड्रेस, फिर कंट्रोल फील्ड, फिर यूजर इंफॉर्मेशन, फिर आपका ये फ्रेम कंट्रोल, फ्रेम चेक सीक्वेंस, और फिर आपका फ्लैग। यहाँ पे आपका FCS है, नॉट PCS, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर इज, यहाँ पे जो आपका आई फ्रेम है, इट इज बेसिकली इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल, दोनों चीजें आपकी आई फ्रेम में होती है, ठीक है। सो आई फ्रेम बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्रेम नाम है इसका। सो यूजर इंफॉर्मेशन, जो यूजर के बारे में जो मैसेज है वो आपका होगा ही होगा, ठीक है। देन वी हैव एस फ्रेम। एस फ्रेम इज बेसिकली सुपरवाइजर फ्रेम। सो हमने अभी पढ़ा था कि सुपरवाइजरी फ्रेम जो होता है, इट कंटेन्स ओनली द कंट्रोल, इट डज नॉट कंटेन एनीथिंग रिलेटेड टू योर इंफॉर्मेशन। सो दैट इज व्हाई यू विल सी कि यूजर इंफॉर्मेशन वाला जो आपकी फील्ड है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है। फ्लैग प्रेजेंट है, एड्रेस प्रेजेंट है, कंट्रोल प्रेजेंट है, FCS दैट इज फ्रेम चेक सीक्वेंस और फ्लैग सब प्रेजेंट है, यूजर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है। फिर आपका है यू फ्रेम, दैट इज अननंबर्ड फ्रेम। सो बेसिकली इट इज फॉर सिस्टम मैनेजमेंट। सो यहाँ पे अगर सिस्टम मैनेजमेंट की टर्म से बात हो रही है, सो यहाँ पे जो आपकी फील्ड है वो मैनेजमेंट से जो इन्फॉर्मेशन है वो कंटेन करेगा, नॉट द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू यूजर, ठीक है। सो बाकी सारी फील्ड सेम है, बस आपका जो मेन ये वाली जो फील्ड होती हैं, ये यूजर इन्फॉर्मेशन वाली, वो आई फ्रेम में प्रेजेंट है, एस फ्रेम में प्रेजेंट नहीं है, और यू फ्रेम में वो मैनेजमेंट की इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ मैनेजमेंट हाँ, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन। आपकी जो बुक है ना उसकी पीरियड्स में है ये इन्फॉर्मेशन मिस्टेक, इट इज इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी कि आपकी क्या क्या फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे जो आपकी एड्रेस फील्ड है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैंने ऐड कर दी है, इन केस वो कभी पूछ ले, बट इतना डिटेलिंग आपके लिए नेसेसरी नहीं है, बट स्टिल देख लेते हैं कि क्या है। सो फर्स्ट इज योर फ्लैग फील्ड। सो फ्लैग फील्ड बेसिकली क्या है, आपका एक 8 बिट का सीक्वेंस है, मतलब एक पैटर्न है बेसिकली, और वो पैटर्न क्या है, 0 starting with 0, ending with 0, and बीच में आपके 6 ones. So this is the flag field. So ये आपकी अगर HDLC का कोई भी फ्रेम है, so उसमें हमेशा यही फ्रेम रहेगा, यही आपका फ्लैग रहेगा. So it is an 8-bit sequence with bit pattern 0, 6 ones and then 0 that identifies both the beginning and end of the frame and serves as a synchronization pattern for the receiver. So मतलब कि रिसीवर को सिंक्रोनाइज, अगर अपना पैटर्न आपका जो भी रिसीवर को आप भेजोगे, अपना जो भी फ्रेम भेजोगे, तो उसमें यू विल ऑलवेज यूज दिस फ्लैग फील्ड, दैट इज एन 8-bit सीक्वेंस जो आपका है 0, 6 months and then 0. ये चीज याद रखना। अब आपका आया एड्रेस फील्ड। सो एड्रेस फील्ड बेसिकली कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेकेंडरी स्टेशन, ठीक है। सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस कंटेन करती है आपकी एड्रेस फील्ड। अगर प्राइमरी स्टेशन ने फ्रेम को क्रिएट किया है, ठीक है, प्राइमरी स्टेशन हैज क्रिएटेड द फ्रेम, सो इट विल कंटेन 2 एड्रेस। 2 एड्रेस मतलब कि किसको एड्रेस जा रहा है,
ठीक है, हमेशा याद रखना कि एड्रेस फील्ड में हमेशा एवरी टाइम सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी स्टेशन का एड्रेस ही आएगा। अब ये कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी स्टेशन ने फ्रेम को भेजा है या सेकेंडरी ने, वो आपको पता लगेगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि एड्रेस फील्ड ऑलवेज कंटेन्स द एड्रेस ऑफ सेकेंडरी स्टेशन ओनली। So अगर primary station ने create, suppose this is your primary station and this is your secondary one, so this is your primary and this is secondary. So अगर this station has created a frame, so it will contain two address, मतलब कि ये किसको जा रहा है, the address to which this frame is being sent to. And if secondary has created a frame, अब यहाँ से एक frame create हुआ, that is basically it can either be a response or it can be either a message. ठीक है, अगर ये सेकेंडरी स्टेशन ने किया है, सो इट विल कंटेन फ्रॉम, सो बेसिकली आपका रिस्पॉन्स है ये, सो इट विल बेसिकली फ्रॉम, मतलब कि ये सेकेंडरी स्टेशन ने आपको भेजा है, दिस इज फ्रॉम सेकेंडरी स्टेशन, दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एड्रेस. सो दिस इज व्हाट इज द मीन दैट एड्रेस फील्ड में अगर HDLC फ्रेम की बात हो रही है, इट विल ऑलवेज 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 कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द सेकेंडरी स्टेशन. अब सेकेंडरी स्टेशन ने डेटा क्रिएट किया, फ्रेम क्रिएट किया है, तो फ्रॉम आएगा, और अगर उसको रिसीव हो रहा है तो टू आएगा. ये बात क्लियर है? Yes. ये बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो एड्रेस फील्ड जो है आपकी, इट कैन ईदर बी 1 बाइट, ठीक है, या तो वो 1 बाइट ही हो सकती है या फिर वो सेवरल बाइट्स की हो सकती है. अब 1 बाइट ही कब होगी, अगर मान लो 1 ही आपके पास सेंडर, आपके पास सेकेंडरी स्टेशन है तब. और मल्टीपल बाइट्स कब होगी, जब आपके पास मल्टीपल आपके सेकेंडरी स्टेशंस हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ नेटवर्क. सो अगर आपकी एड्रेस फील्ड जो सिर्फ 1 बाइट की है, ये चीज याद रखना, अगर आपकी एड्रेस फील्ड 1 बाइट की, 1 बाइट मींस हाउ मेनी बिट्स, 8 बिट्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. So if your address field is only 1 byte, so last bit हमेशा 1 होगी. ठीक है, so what they're trying to say कि अगर address field सिर्फ 1 बाइट की है, if your address field is only 1 byte means 8 bits, so last bit हमेशा 1 होगी. Then what they are saying, then they are saying कि if the address is more than 1 byte, मतलब अब आपकी मान लो सपोज यहाँ पे हमने 2 बाइट के एड्रेस ले लिया, ठीक है, सपोज 2 बाइट मतलब 16 bits, so 1 2 3 4 5 6 7 8, and then we have 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, आपके 2 बाइट्स के एड्रेस हैं, all bytes but the last one. अब यहाँ पे मैंने 2 बाइट्स लिए यहाँ पे, so what they are saying, all bytes but the last one will end with 0. मतलब लास्ट वाली बाइट को छोड़ के, चलो सपोज 3 बाइट्स का एड्रेस लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 3 बाइट्स का लेते हैं, जस्ट टू इन केस आपको समझाने के लिए. सो दीज आर योर 3 बाइट्स. सो दे आर सेइंग अगर आपका एड्रेस इज हैविंग मोर देन 1 बाइट, सो ऑल बाइट्स बट द लास्ट वन, मतलब लास्ट वाली बाइट को छोड़ के, इस वाली बाइट को छोड़ के रेस्ट ऑल जो बाइट्स होंगी दे विल एंड विद 0. मतलब ये भी 0 से एंड करेगा और ये भी 0 से एंड करेगा, और लास्ट वाला एंड करेगा 1 से. सो व्हेन each intermediate byte अगर 0 से एंड कर रहा है, this means that there are more addresses to come. मतलब कि 0 अगर आपका मान लो आप एड्रेस फील्ड में आपने मेंशन किया ये वाला एड्रेस, ठीक है, सो अगर आपकी लास्ट बिट जो है, आपने जो भी एड्रेस फील्ड में मेंशन किया है, अगर आपकी लास्ट बिट जो है वो 0 है, दिस मींस दैट मोर एड्रेसेस आर देयर. ठीक है, बट अगर वो आपकी 1 हो जाए लास्ट बिट, सो दिस मींस दैट दिस इज द लास्ट एड्रेस. ये बात समझ में आ गई? नो मैम. वो ये बोल रहे हैं कि सपोज ये आपकी एड्रेस फील्ड है, ठीक है, दिस इज योर फ्रेम, आपका कोई भी फ्रेम है और यहाँ पे आपकी एड्रेस फील्ड है. आपने नोटिस किया होगा कि इस फ्रेम में पहले से कोई भी वो मेंशन नहीं है कि ये इतने बाइट का है, ये इतने बाइट का है, ये इतने बाइट का है, कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, राइट? सो यहाँ पे व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपने सपोज आपने एक एड्रेस सेंड किया एंड एड्रेस जो है आपका वो है 1 बाइट का, ये जो एड्रेस है दैट इज ऑफ 1 बाइट. सो 1 बाइट बेसिकली मींस क्या होता है, 1 बाइट मींस 8 बिट्स. सो अगर आपका 1 बाइट है, सो 8 बिट्स, लास्ट वाली बिट जो होगी वो होगी हमेशा 1.
अगर आपका एक बाइट है खाली, इफ यू हैव ओनली 1 बाइट एज एड्रेस, 1 बाइट का एड्रेस है, दैट्स 8 बिट्स एड्रेस है आपका, सो लास्ट वाली बाइट, जो लास्ट वाली बिट होगी वो हमेशा 1 होगी. व्हाट नाउ सेकंड केस इज कि अब जो आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो है मोर देन 1 बाइट. अब मोर देन 1 बाइट का एग्जांपल हम ले लें, कुछ भी ले लो आप, मैंने अभी 3 लिया था, लेट्स टेक फॉर 4 बाइट्स. अब जो मेरा एड्रेस है वो 4 बाइट्स का है. 4 बाइट्स का मतलब क्या हुआ? 4 बाइट्स मींस हाउ मेनी बिट्स? 32 बिट्स. यही मतलब हुआ. Yes, ma'am. ठीक है. सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग, सो अब ये बोल रहे हैं कि अब आपके पास 32 बिट्स हैं. सो व्हाट, लेट्स ड्रॉ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक बाइट हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दूसरा. 2 3 4 5 6 7 8, ये थर्ड. एंड 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फोर्थ. सो दिस इज योर फर्स्ट बाइट, this is your second one, and this is your third one, and this is your fourth one. आपके पास 4 बाइट्स हो गए. अब वो क्या बोल रहे हैं, they are saying कि लास्ट वाले को छोड़ के, लास्ट वाला आपको जो लास्ट बाइट है उसको छोड़ के जितनी भी आपके पास बाइट्स हैं उनकी जो लास्ट बिट होगी, लास्ट बिट जो होगी वो 0 होगी एवरी टाइम. Why 0 होगी? बिकॉज अगर आपकी लास्ट बिट एड्रेस की आपके 0 है, दिस मीन्स दैट हमारे पास और एड्रेसेस हैं, देयर आर मोर एड्रेसेस दैट आर टू बी एनकाउंटर्ड. मतलब इस एड्रेस में आपके पास और भी बिट्स, और भी बाइट्स हैं, और भी बिट्स हैं जो आपको एनकाउंटर करनी है. और अगर आपका वो लास्ट है, लास्ट आपका बाइट है, सो उसका हमेशा 1 होगा. सेम थिंग, यहाँ पे सिर्फ एक बाइट थी, दैट इज वाई हमने 1 रख दिया था. बट यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बाइट्स हैं, दैट इज वाई हमने लास्ट वाले का 1 रखा, बाकी सबकी लास्ट बिट को 0 कर दिया. अब बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, अगर एड्रेस में मोर देन 1 बाइट है, सो ऑल बाइट्स बट द लास्ट वन, ऑल बाइट्स बट द लास्ट वन का मतलब एक्सेप्ट द लास्ट वन, लास्ट वाले बाइट को छोड़ के बाकी सारे बाइट्स का जो विल एंड विद 0. एंड विद 0 मतलब कि जो लास्ट बिट होगी वो 0 होगी. सिर्फ लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला जो बाइट है आपका, वो एंड करेगा 1 से. सो दिस इज व्हाट दे आर मीनिंग. एंड अगर हम एंड कर रहे हैं 0 से हर इंटरमीडिएट नोड के बाइट को, अगर हम हर इंटरमीडिएट बाइट में जो लास्ट अगर हम 0 से एंड कर रहे हैं, दिस मीन्स to the receiver that there are more address bytes to come. मतलब एड्रेस की और बाइट्स हैं जो आनी बाकी हैं. जैसे ही वो 1 हो जाएगा, दिस मीन्स कि ये लास्ट एड्रेस था, अब और कोई एड्रेस नहीं आना है. अब चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, ये हो गया आपकी एड्रेस फील्ड. अब नेक्स्ट इज योर कंट्रोल फील्ड. सो बेसिकली जो कंट्रोल फील्ड है, इट इज इधर 1 और 2 बाइट सेगमेंट. ठीक है, या तो 1 बाइट का होगा या 2 बाइट का होगा, यूज्ड फॉर फ्लो एंड एरर कंट्रोल. ठीक है, कंट्रोल फील्ड बेसिकली जो आपकी कंट्रोल हमने पढ़ा है अभी, एरर कंट्रोल पढ़ा था, फ्लो कंट्रोल पढ़ा था, उसके लिए. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिट्स इन दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन फ्रेम टाइप. अभी हम कंट्रोल फील्ड को डिटेल में पढ़ेंगे. अलग अलग फ्रेम्स के अलग अलग कंट्रोल फील्ड्स होते हैं. ठीक है, तो आपके फ्रेम्स हो गए आई फ्रेम, एस फ्रेम एंड यू फ्रेम. सो हर फ्रेम के अलग अलग टाइप्स हैं, कंट्रोल फील्ड्स हैं. Then information field. So information field contains the user's data from the network layer. या तो नेटवर्क लेयर से जो डेटा आया है वो, या फिर जो मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन कौन से फ्रेम में है? कौन से फ्रेम में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन लगती है? लास्ट सेकंड. लास्ट सेकंड तो नहीं है, यू फ्रेम. यू. यस, यू फ्रेम. सुपरवाइजर में तो कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं. ठीक है, और इंफॉर्मेशन फील्ड की जो लेंथ है वो वैरी कर सकती है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे. फिर आपका आया FCS, दैट इज फ्रेम चेक सीक्वेंस. ये बेसिकली अगर आपके फ्रेम में कोई एरर है, कोई भी आपके एरर अगर है, सो उसको डिटेक्ट करने के लिए फील्ड है. तो बेसिकली फ्रेम चेक सीक्वेंस में आप चेक CRC का यूज कर सकते हो. जो भी आपके एरर करेक्शन मेथड्स हैं, एरर को डिटेक्ट करने के, बेसिकली नॉट करेक्शन, एरर डिटेक्शन जो मेथड्स हैं, आप वो यूज कर सकते हो इसमें FCS फील्ड. ठीक है, सो ये तो आपकी हो गई फ्रेम की फील्ड्स. यस, फ्लैग फील्ड, एड्रेस फील्ड, कंट्रोल फील्ड, इंफॉर्मेशन फील्ड, FCS फील्ड. ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी योर कंट्रोल फील्ड्स. ये आपकी कंट्रोल फील्ड्स हैं सिर्फ. ठीक है, सो अभी इनको हम डिटेल में देखते हैं.
सो बेसिकली एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। सो HDLC की फुल फॉर्म बताओ। हाई लेवल, हाँ, हाई लेवल डेटा लिंक, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। करेक्ट, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। दो ट्रांसफर मोड्स बताओ। NRM, asynchronous, एसिंक्रोनस क्या? बैलेंस। NRM की फुल फॉर्म? नॉर्मल रेस्पॉन्स। बाकी मॉडल। ठीक है। सो अब बताओ NRM कौन सा टाइप का है, बैलेंस्ड है अनबैलेंस्ड है? सी एसिंक्रोनस के नाम में आ रहा है बैलेंस्ड, दिस मींस NRM ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड। करेक्ट, ठीक है। देन टेल मी इट इज वैलिड फॉर पॉइंट टू पॉइंट और मल्टीपल पॉइंट? NRM both. हाँ जी, NRM both are asynchronous, point to point. correct, very good. So this is for both, that is point to point and multi point, and this is only for point to point. Okay, correct. Then next we have frames. So what are the possible fields? How many fields can exist in a frame? 6. Up to 6, ठीक है। So 1 2 3 4 1 2 3 5 6. So what are those 6 fields? First is flag. Then address, Address, control. control, Information. correct. हाँ, information, पहले तो information है, and then here FCS, correct, FCS, that is FCS की full form? flow control, frame flow control तो आपका इस कंट्रोल में आ गया ना, yes, correct. Frame check sequence, लास्ट में भी फिर आपका क्या आ जाएगा? फ्लैग। ओके, व्हाट आर द टाइप ऑफ फ्रेम्स? टाइप क्या है फ्रेम्स के? फ्रेम 3 टाइप्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? फुल फॉर्म नॉट आई नहीं, फुल फॉर्म नाम बताओ पूरा। करेक्ट, इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी, करेक्ट, unnumbered, करेक्ट, अननंबर्ड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक बिहाइंड योर आपके HDLC। अब जो आप पढ़ोगे, अब नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस कंट्रोल फील्ड, ठीक है। अब वी विल बी डिस्कसिंग दिस कंट्रोल फील्ड। हर फ्रेम का, दैट इज योर इंफॉर्मेशन फ्रेम, सुपरवाइजरी फ्रेम एंड अननंबर्ड फ्रेम हैज डिफरेंट कंट्रोल फील्ड्स, सो वी विल डिस्कस देम। सो फर्स्ट अब आप फोकस करो सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे, दैट इज योर आई फ्रेम, ठीक है। सिर्फ आई फ्रेम देखना, एस फ्रेम और यू फ्रेम अभी नहीं देखना है। आई फ्रेम में व्हाट यू कैन सी इज 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स हैं, ठीक है। सो कंट्रोल फील्ड आपको या तो 1 बाइट का हो सकता है या 2 बाइट का हो सकता है। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रोल फील्ड इन टर्म्स ऑफ ओनली हाउ मेनी बाइट? 1 बाइट, ठीक है। सो when your starting bit is 0, अगर आपकी कंट्रोल फील्ड की स्टार्टिंग बिट है 0, so this means that it is an I frame. आई फ्रेम हमेशा आपकी स्टार्टिंग बिट जो होगी आई फ्रेम में वो हमेशा 0 होगी। आप नोटिस करो कोई भी बिट्स जो है वो सेम नहीं है। अगर स्टार्टिंग बिट्स हमने फिक्स कर दी हैं, सो बिट्स आर नॉट सेम। एस फ्रेम की स्टार्टिंग बिट्स है 1 0,
U frame की starting bits है 1 1. So in order to differentiate the 3 frames from each other, that which type of frame we are talking about, we have this field, that is this one, कि या तो 0 है, so this is I frame, 1 0 है तो S frame, and 1 1 है तो U frame. ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है? Yes, sir. Now let's talk about control field for I frames. So I frames basically are designed to carry the user data. ठीक है, यूजर का जो डेटा है that is basically used to carry in your I frame. So सब fields जो हैं आपकी वो क्या क्या हैं? So let me just draw a frame over here जिसमें आपकी 8 bits हैं. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. ठीक है, so first bit जो आपकी ये first bit है, it defines the type of frame. It defines the type. और I frame में first bit क्या होगी हमेशा? 0. ठीक है, this means that frame is an I frame. अब जो आपकी ये next 3 bits हैं, these 3 bits, these are basically called NS. मतलब sequence number. They basically define the sequence number of the frame. कि frame का sequence number क्या है? So 3 bits हैं अगर आपकी, if you have 3 bits here, तो कितने sequence numbers possible हैं? If you have, if your NS is 3 bits, how many sequence numbers are possible? 2 to the power 3. 2 to the power 3. That is 8 sequence numbers are possible. Okay. So this is what there कि 0 to 7 आपके 0 to 7 sequence numbers आपके हो सकते हैं for I frame. फिर आपकी I last 3 bits. Then we have the last 3 bits. These last 3 bits are called NR. NR basically are for your acknowledgement number. When piggybacking is used. Piggybacking कब था? Piggybacking basically was जब आप acknowledgement भेज रहे थे along with the data. ठीक है, so piggybacking is when you are sending acknowledgement plus data. So when we have piggybacking, basically then we use this NR, that is the corresponding acknowledgement number. क्या होगा अभी आप देख. And then this is the bit that is remaining. अब आपकी single bit बची. Yes, ये वाली जो bit बची है आपकी, this is basically known as P/F bit. ठीक है, तो this is a single bit with a dual purpose. So it has, this bit is used for dual purpose. What are the two purpose? Now you see, it has a meaning when it is set 1. अगर आपकी ये वाली bit 1 है, if this bit is 1, then only it has a meaning. What it is? It is either pole or final. या तो P and F है, P/F. So P stands for pole and F stands for final. So pole कब होगा? It means pole when frame is sent by primary station to secondary station. अगर आप primary से secondary पे अपना frame send कर रहे हो, then it is known as pole. And when you are sending the frame by a secondary to primary, मतलब from secondary to primary, then it is final. So bit क्या है? Bit set कब होगी? जब उसकी value होगी 1. Or it can either mean pole or it can either mean final. So when it is pole, it is pole when you are sending the data from primary to secondary, and it is final when you are sending the frame from secondary to primary. अब चीज clear हुई? Yes, ma'am. Ma'am, work of pole and final, what is why this is used? Framing. बताए तो, अगर आप primary से, अगर आप primary device से secondary device पे मैं information भेज रहे हो, this is your primary, this is your secondary. So आप बताओगे कि ये pole है. Pole मतलब pole will tell that message is from primary station to secondary station. और अगर आपका message है from secondary to primary, so वो बताएगा final. तो अगर मेरे फ्रेम में फाइनल मेंशन्ड है, कंट्रोल सीक्वेंस में फाइनल मेंशन्ड है, तो मुझे ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा, ओके दिस मैसेज इज कमिंग फ्रॉम द सेकेंडरी स्टेशन एंड इट इज गोइंग टू द प्राइमरी स्टेशन. अब क्लियर हो गया? Yes. ओके, देन वी हैव एस फ्रेम्स. अब आपके आए एस फ्रेम्स की कंट्रोल फील्ड. सो इफ यू सी हियर,
यहाँ पे if you will notice what are the starting two bits 1 and 0. So ये basically बताएगा आपका type. So supervisory frames are used for flow and error control whenever piggybacking is either impossible or inappropriate. Piggybacking या तो impossible हो जाए या आप नहीं लगा पाओ. That is ये कब possible है, जो आपका स्टेशन है या तो उसके पास कोई डेटा नहीं है. पिगीबैकिंग क्या है बेसिकली? पिगीबैकिंग है कि जब आप एक्नॉलेजमेंट को भेज रहे हो अलोंग विद द डेटा, दिस इज पिगीबैकिंग, राइट? बट अब पिगीबैकिंग कब पॉसिबल नहीं है? पिगीबैकिंग तब पॉसिबल नहीं है या तो आपके पास डेटा नहीं है भेजने के लिए, ठीक है, या फिर आपके पास या यू नीड टू सेंड अ कमांड और रिस्पॉन्स अदर देन एक्नॉलेजमेंट. डेटा नहीं बट यू हैव टू सेंड कमांड और इधर रिस्पॉन्स. एक्नॉलेजमेंट के अलावा आपको कुछ कमांड भेजना है या आपको रिस्पॉन्स भेजना है. सो इन दैट केस पिगीबैकिंग इज नॉट यूज्ड, इज नॉट अप्रोप्रिएट बेसिकली. सो एस फ्रेम्स के पास इंफॉर्मेशन फील्ड नहीं होती. इनकी जो फर्स्ट टू बिट्स होती हैं, दीज आर योर 1 and 0. फिक्स्ड है ये चीज, ठीक है. 1 and 0 इज फिक्स्ड फॉर एस फ्रेम. अगर फ्रेम कोई भी फ्रेम है और वो उसकी कंट्रोल फील्ड की फर्स्ट टू बिट्स है 1 and 0, दिस मीन्स दैट दिस इज एन एस फ्रेम. लास्ट 3 बिट्स हो गई आपकी एनआर. एनआर बेसिकली क्या है? एनआर इज बेसिकली फॉर योर एक्नॉलेजमेंट नंबर. या तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर बता रहे हो या फिर आप बता रहे हो कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, जो भी आपका डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम कि आपका एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है मतलब इसमें कोई एरर नहीं है या फिर ये नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है. और जो बीच की 2 बिट्स हैं, these two bits are basically known as codes, ठीक है. अब अगर मेरे पास कोड के लिए सपोज आई हैव 2 बिट्स, ठीक है, कोड के लिए आई हैव 2 बिट्स, सो टोटल टाइप ऑफ कोड्स कितने हो जाएंगे? 4. 2 raised to power 2, that is 4. So there are 4 type of codes that can be generated in S frame. अब वो क्या है? These are, सबसे पहले तो है receive ready, RR, ठीक है. तो RR means अगर आपकी सब फील्ड की वैल्यू है 0 0, सो यहाँ पे सिर्फ कोड की बात हो रही है, ठीक है, सिर्फ वो 2 फील्ड्स की बात हो रही है. सो इफ यू हैव 0 and 0, दैट इज मीन्स RR, रिसीव रेडी. रिसीव रेडी मीन्स दैट कि जो आपने एक्नॉलेज, जो आपका फ्रेम आया है, दिस काइंड ऑफ फ्रेम एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ अ सेफ एंड साउंड फ्रेम. मतलब कि आपका जो भी फ्रेम है वो मुझे बहुत सेफली एंड साउंडली या तो फ्रेम या ग्रुप ऑफ फ्रेम्स रिसीव हो गए हैं. So when it will be sent when the frame is being received safely and soundly. So यहाँ पे आपका acknowledgement number जो है, जो भी आप acknowledgement भेज रहे हो, वो आपका mention हो जाएगा. Receive ready means कि आपने जो भी मुझे send किया था, whatever you have sent, I have received it and it is safe with me. Right? ये हो गया receive ready. Then we have receive not ready. अब receive not ready की field है 1 0. So ये क्या है? This kind of frame is an RR frame only. RR frame ही है, but इसमें कुछ additional functions है. क्या है? वो ये बताता है कि आपने जो मुझे frame भेजा था वो तो मैंने receive कर लिया है, but it announces that receiver is busy and cannot receive more frames. So what was happening? Receive ready was basically telling कि आपने जो मुझे भेजा वो मैंने receive कर लिया बस. बट रिसीव नॉट रेडी टेल्स कि आपने जो मुझे भेजा है वो तो मैंने रिसीव कर लिया, बट आई वोंट बी एबल टू रिसीव एनी मोर फ्रेम्स फॉर नाउ बिकॉज आई एम बिजी. ये चीज, ये डिफरेंस क्लियर हो गया दोनों में? यस मैम. ठीक है. सो रिसीव रेडी मीन्स कि आई एम रेडी टू रिसीव एंड आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड योर मैसेज एंड आई कैन रिसीव मोर. बट रिसीव नॉट रेडी मीन्स कि मैंने रिसीव तो कर लिया बट आई एम नॉट रेडी फॉर रिसीविंग एनी मोर मैसेजेस और एनी मोर फ्रेम्स. फिर आया रिजेक्ट. अच्छा, अब आपको ध्यान होगा, अगर इफ यू रिमेम्बर दी फ्लो कंट्रोल्स, तो आपको यह याद होगा कि गो बैक एंड जो था आपका, गो बैक एंड जो फ्लो कंट्रोल था, दैट वाज बेसिकली डिस्कार्डिंग दी मैसेजेस. अगर वो आउट ऑफ ऑर्डर थे या वो गलत थे, कुछ भी था अगर, सो दैट गो बैक एंड वाज नॉट सेंडिंग एनी नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. याद है? याद है आप लोगों को? स्टॉप एंड वेट वाज सेंडिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, सिलेक्टिव रिपीट वाज सेंडिंग नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, बट गो बैक एंड वाज नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट. इट वाज सिंपली डिस्कार्डिंग द एंटायर मैसेजेस, एंटायर फ्रेम्स. सो यहाँ पे क्या होता है, व्हाट दे आर सेइंग दैट एक तो इसकी सब फील्ड की वैल्यू है 0 1, ठीक है,
0 1 है, अगर 0 1 है, this means reject. So we can use this type of negative acknowledgement with the go back and ARQ to improve the efficiency. ठीक है, बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है आपको कि रिजेक्ट का जो आप यूज कर सकते हो वो आप यूज कर सकते हो कि विद गो बैक एंड, कि अगर आपके पास कोई भी करप्टेड मैसेज आया है, कोई भी करप्टेड फ्रेम आया है, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इम्प्लाई दिस इन गो बैक एंड, जिससे कि बिफोर द सेंडर टाइमर एक्सपायर्स आप ये बता सकते हो कि आपने जो फ्रेम भेजा था वो डैमेज था, वो लॉस्ट हो गया या कुछ भी हो गया. So this will act as a negative acknowledgement number, that is NR. तो NR यहाँ रिजेक्ट के केस में एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर का की तरह वर्क करेगा. रिसीव रेडी में कुछ नेगेटिव नहीं था, तो उसने पॉजिटिवली अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर दिया. रिसीव नॉट रेडी में भी कुछ नेगेटिव नहीं था, बस ये था कि अब मैं आगे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, आई एम बिजी फॉर नाउ, सो इसलिए उसने पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर सेव कर दिया. बट रिजेक्ट में क्या है कि वो आपको ये बता रहा है कि आई एम रिजेक्टिंग दिस फ्रेम बिकॉज इट इज ईदर लॉस्ट और डैमेज. So that is why he is sending the negative acknowledgement number. ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है. लास्ट है आपका सेलेक्टिव रिजेक्ट. याद रखना सेलेक्टिव रिजेक्ट, दैट इज 1-1. सो यहाँ पे क्या है, ये भी आपका एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट फ्रेम ही है जो आप सेलेक्टिव रिपीट में यूज करते हो. सेलेक्टिव रिपीट में तो आप ये यूज करते थे ना नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का. सो सेलेक्टिव रिपीट में जो आपका फ्रेम यूज होता है, दिस इज बेसिकली द सेम फ्रेम, दैट इज सेलेक्टिव रिजेक्ट. और ये भी आपको एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड करेगा. सो इफ यू हैव क्विकली, वी हैव टू क्विकली रिवाइज, क्योंकि चारों पॉइंट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स, आपकी जो कंट्रोल फील्ड है, इफ वी टॉक अबाउट एस फ्रेम, अगर हम एस फ्रेम की बात करते हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एस फ्रेम, सो एस फ्रेम के केस में फर्स्ट यहाँ पे हो गया 1 and 0, ये तो आपकी बिट्स फिक्स हो गई. फिर आपकी यहाँ पे 2 बिट्स आई, दीज 2 बिट्स आर फॉर कोड्स. फिर ये बिट आपकी सेम P और F वाली है, एंड ये जो 3 बिट्स हो गई आपकी, ये बेसिकली आपकी बिट्स हो गई फॉर NR, दैट इज फॉर योर रिस्पॉन्स. ठीक है. अब नाउ लेट्स सी इन डिटेल कि क्या क्या है. तो अगर मैं कोड्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कोड्स, सो कोड्स में मेरे पास एक है 00, एक है 01, एक है 10, एक है 11. सो 00 is basically for receive ready and 10 is for receive not ready. ठीक है. Then 01 is basically for reject and 11 is basically for selective reject. So ये दोनों जो हैं, these are your positive acknowledgements and ये दोनों जो हैं, these are your negative acknowledgement numbers. So this is what you have to keep in mind. Clear हो गया? Yes, ma'am. ठीक है. अब जो आपके आई वी फ्रेम नहीं, यू फ्रेम, सॉरी, यू फ्रेम जो है बेसिकली इसमें क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन फील्ड है जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट सिस्टम के रिस्पेक्ट में. ठीक है. सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि अगर आपके 1-1 लिखा है स्टार्टिंग में, सो दैट इज अ यू फ्रेम. अब यहाँ पे आप नोटिस करो, अगर आपने नोटिस किया वो एस फ्रेम में, सो दीज 3 वर व्हाट, दीज 3 वर फॉर योर एक्नॉलेजमेंट, राइट. बट वी फ्रेम के केस में क्या हो रहा है, यू फ्रेम में सॉरी, एक्नॉलेजमेंट कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोड्स हैं. सो इन टोटल 5 बिट्स के कोड्स हैं यहाँ पे. सो वी फ्रेम कोड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस. एक 2 बिट का प्रीफिक्स है और 3 बिट का सफिक्स है. प्रीफिक्स मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में. सो इसका मतलब टोटल 5 बिट्स का कोड सेगमेंट है, जिससे आप 32 टाइप के डिफरेंट फ्रेम्स बना सकते हो, राइट. 5 बिट्स मतलब 2 raised to power 5, दैट इज 32. सो 32 टाइप के डिफरेंट यू फ्रेम्स आपके बन सकते हैं. सो उसका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे सेव है. अगर आपका मतलब ये देख लो आप, इससे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका कोड या आपका स्टार्टिंग के 2 बिट्स हैं या आपके बाद के 3 बिट्स हैं, सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आप कमांड भेज रहे हो SNRM, सो आप ये बता रहे हो कि नॉर्मल रिस्पांस मोड को सेट कर दो. फिर आप बोल रहे हो SABM, सो इसका मतलब कि एसिंक्रोनस बैलेंस मोड को सेट कर दो. और DM अगर रिस्पांस आ रहा है वहां से, तो वो आ रहा है कि डिस्कनेक्ट मोड है. मतलब ये आपकी बेसिकली है कि आपने कमांड भेजे हैं, कुछ कमांड के रिस्पॉन्स भी हैं वहां से. सो दिस इज व्हाट बेसिकली अ टाइप जो आपके कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली आपके जो आपका जो भी आप बोल रहे हो मैनेजमेंट है, जो आपके जो भी मैनेजमेंट जो आप कैसे मैनेज करना है पूरा सिस्टम, उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे हो, वो बेसिकली आपको बताता है वी फ्रेम्स में. ठीक है.
तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो मेरे अकॉर्डिंग थोड़े इंपॉर्टेंट है, जितना मुझे लगता है सबसे पहले तो HDLC की फुल फॉर्म, ठीक है, फिर आपके मोड्स ऑफ ट्रांसफर क्या क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद आपका टाइप ऑफ फ्रेम्स क्या क्या है। फ्रेम फील्ड से मुझे लगता नहीं कि वो इतना पूछेंगे, बट अगर टाइप ऑफ फ्रेम्स है तो पढ़ लो एक बार, फ्रेम फील्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेम फील्ड्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता वो आपसे कुछ पूछेंगे। कंट्रोल फील्ड्स आर वेरी रेयर चांसेस है कि वो आपसे पूछ सकते हैं। हाँ, वो ये आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि कंट्रोल फील्ड में कितने बाइट्स की होती है आपकी, जो अगर ये आपसे पूछ सकते हैं कि P/F जो है वो क्या होता है, वो P किस चीज का मतलब होता है, F किस चीज का मतलब होता है, ये आपसे वो थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, इसका डिटेल वो आपसे नहीं पूछेंगे। सो इसमें ये आपके सिलेबस में था, कोई क्वेश्चन है नहीं इसका, ये सिलेबस में था इसलिए मैंने, और बुक में भी दिया हुआ है, बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है, सो दैट इज व्हाई आई हैव एडेड, और इतना ही नेसेसरी, इससे ज्यादा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिलेगा इनकेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सॉल्यूशन अड्डा पे तो नहीं है, मैंने देखा था सॉल्यूशन अड्डा पे नहीं है, अगर मुझे कुछ मिलेगा, इफ इन केस आई विल फाइंड समथिंग, सो आई विल डिस्कस इट विद यू। एक क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड, सो आप ये देख सकते हो, they are saying when data and acknowledgement are sent in the same frame, this is known as piggybacking, piggybacking, backpacking या good packing. This is any previous year question, ये आपका नेट का मुझे पता नहीं कौन से ईयर का है ये, so yes, बाकी कहाँ गए लिपिका, संगीता? ठीक है, सो करेक्ट आंसर हो गया आपका पिगी बैकिंग। अभी हमने पढ़ा है पिगी बैकिंग बेसिकली क्या होता है, डेटा और एक्नॉलेजमेंट जो आप सेम फ्रेम में सेंड करते हो, दैट इज योर पिगी बैकिंग। सो यही क्वेश्चन है। बाकी आप लोग जो लेट आया था, मैं आपको दोबारा बता दूं कि मीडिया जो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, रुको एक मिनट, let me just share the yes, so yes, तो हम यहाँ पे है ना, फंक्शंस ऑफ OSI एंड आपकी लेयर्स जो हैं, सो आपका फ्रेमिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, एरर डिटेक्शन, कंट्रोल करेक्शन हो गया, फ्लो कंट्रोल, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हो गया, HDLC भी हो गया। अब नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद मल्टीपल एक्सेस, जो आपका कल स्टार्ट होगा, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है, इसमें आपके CSMA/CD है, इसमें आपका CSMA/C अलोहा है इसमें, ठीक है, अलग अलग चीजें हैं इसमें। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है, मतलब ये पूरा करने के बाद, बिफोर स्टार्टिंग योर एड्रेसिंग, बिफोर स्टार्टिंग योर IPv4 बेसिकली व्हाट वी विल डू, एक हम न्यूमेरिकल सेशन रखेंगे इस पूरे पार्ट को करने के बाद, इस पूरे बुलेट को करने के बाद, ठीक है। सो उसके उस न्यूमेरिकल्स में व्हाट विल हैपन इज कि आप लोग एक खुद तो ट्राई करो एक बार, ठीक है, जो नहीं हो रहे क्वेश्चंस, जो भी आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, जस्ट सेंड मी, ठीक है। सो जब भी आपका वो सेशन होगा, न्यूमेरिकल सेशन, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स आते भी हैं एंड थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स क्या, आप थ्योरी भी ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स में बहुत पूछे भी जाते हैं एंड मोस्टली न्यूमेरिकल्स जो है लोगों के गलत भी हो जाते हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू कीप अ सेपरेट सेशन फॉर न्यूमेरिकल्स, बिकॉज थ्योरी और न्यूमेरिकल एक साथ एक ही क्लास में बहुत थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब टफ नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है वो चीज कवर करनी। सो दैट इज व्हाई व्हाट वी विल डू इज कि हम न्यूमेरिकल का एक अलग सेशन रखेंगे हर एक उसके बाद, जैसे यहाँ पे आपकी IPv4 की बुलेट है, ठीक है, इसमें जब आपका ये एड्रेसिंग हो जाएगा, एड्रेसिंग तो बेसिकली आपके सारे न्यूमेरिकल साथ में ही हो जाएंगे, एड्रेसिंग नहीं, बट आपकी जो बाकी चीज है ना, ये मैपिंग हो गई या जो भी आपके एरर कंट्रोल, जितने भी TCP, जितने भी न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो हर किसी के पास भी ट्राई कि अगर कोई न्यूमेरिकल्स का पार्ट बच रहा है, कोई न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं, सो वी विल कवर इट आफ्टर द बुलेट। सो मल्टीपल एक्सेस, अभी मल्टीपल एक्सेस में आपका अराउंड आई थिंक 2-3 डेज लग जाएगा, आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे, हाँ 2-3 डेज लग जाएगा। सो आई थिंक यू विल बी गेटिंग अ संडे इन बिटवीन,
ठीक है, अब ये मुझे नहीं पता कि नेटवर्क डिवाइसेस, और ये नेटवर्क डिवाइसेस भी आपकी थ्योरी है बेसिकली, सो ये इतनी तो कोई जरूरी नहीं है कि ये न्यूमेरिकल से पहले कराई जाए, बट अगर नहीं हो पाएंगी सो यू विल गेट अ संडे इन बिटवीन। सो जब भी आपकी ये बुलेट खत्म होगी, उसके तुरंत, बुलेट से मेरा मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट है, हाफ पार्ट, नॉट द एंटायर बुलेट। So addressing start करने से पहले we'll keep one session for numericals. So please keep on practicing the numericals, and कोई भी doubt आता है मुझे भेज दो वो question, but do try yourself at least, एक बार try जरूर करना खुद से मुझे भेजने से पहले। एंड मुझे पर्सनली मत भेजना, मुझे आप ग्रुप पे भेजना, या तो आप अपने नेट वाले ग्रुप पे भेजो, या आप अपने जो आपका किसी भी भेजो आप, जिससे कि बाकी लोग भी ट्राई कर सकें, मे बी दे ऑल्सो विल हैव द सेम डाउट एज यू। ठीक है, सो जो नेट वाला ग्रुप है उस पर आप भेज सकते हो, या फिर आपका जो हमारा जो 29 स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस पर आप भेज सकते हो, वो आपकी विश है, कंप्लीटली इट्स योर विश, जिससे कि बाकी लोग भी एक बार ट्राई कर सके उस क्वेश्चन को, एंड मे बी दे विल गेट द आंसर एंड दे मे एबल टू शेयर इट विद यू। ठीक है, सो ये सब हमने मैंने सोचा इतना, एंड यू आल्सो हैव टू डू दिस न्यूमेरिकल्स, आप करके लो न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स करो, जहां से आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं ऑन दीस टॉपिक्स आप करो। ठीक है, फिर वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, कितना कैसा है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे, एंड जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप अपना मुझे सेंड करेना, एंड आज डेफिनेटली 100% आपकी प्रोपोजिशन की क्लास होगी ही होगी, सो आप लोग क्लास में आ जाना। ठीक है, Yes, ma'am. okay, so this much for today, and chalo, okay then, take care everyone, thank you, bye bye. Thank you, ma'am.